A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is macroeconomics and the Indian economic development. Okay, so we have done a number of times the revision of the all the chapters, but after that we have started to solve the CBSE sample paper, latest CBSE sample paper, which is issued in 2020. So in the last, I think 4 to 5 class, we are continuously solve the all, I think around 14 to 15 questions we have already solved in the previous videos. Okay, so before starting the and continuing the started with the next question, first of all we will recapitulate all the questions whatever we have discussed in the previous classes. Okay, so first of all we will discuss we were discussing with the 1 mark question, that is what is inventory and the change in inventory. Next question which is given in the in the question 1, that is if the value of NFIA is given and factor income paid to abroad is given, so you have to calculate factor income received from abroad. So you should calculate it with the help of addition of the net factor income from abroad and the paid to abroad. You can calculate the value of factor income received from abroad. Okay, after that the question number 2 is given here, that the as a regulator, when there is a situation of the deficient demand or the deflationary gap in an economy, so what you will do, you will restrict the money supply in the economy or you will release the money supply in the economy. So we know very well in the case of deficient demand, the all the things is become fall, means the demand of the commodity, employment, price, output, everything is goes on falling. So you have to, as a economics, we will give the answer that there should be release in the money supply, so that if the money supply will increases, the income of the consumer will increases, employment opportunities generated, if the income will generated more and more, the consumption expenditure will increases, investment expenditure from the firm will also increases. So the situation, deficient demand situation will be the covered up, and the situation that AD becomes equal to the AS. So there should be a release of the money supply in an economy. Okay. Next question is supply of money. So supply of money is simply the money which is currency held by the public and the demand deposit with the commercial bank. Okay. Next question that were identify the correct pair. So we will identify that current account surplus is equal to the when the receipt is more than the payment, right? Next question is identify the following statement is which of the statement is true. So the true is the in the managed exchange rate system, the central bank intervened to moderate exchange rate fluctuation, because in the fixed exchange rate system all the exchange rate is determined by the government. In the flexible or the floating exchange rate system, the exchange rate system is determined by the market forces, that is demand and supply. But in the managed floating there is a intervention of the both, that is fixed exchange and the flexible exchange rate system. So first of all it has been done by the market forces, that is demand and supply. If it is not in control, so there will be the intervention of the RBI or the central bank to control or to set the exchange rate which is prevailing in our economy and with the in respect of the other currency. Next question, that the Indian real estate company received the rent from the Google in the New York. So where it will be recorded in the balance of payment and in which side. Okay, so it is recorded in the current account in the credit side, because it is the income from the investment and it is the positive item that there is inflow of the foreign exchange. So we will record it in the credit side of the current account of the balance of payment. Next question is related to the question is from 7 to 10. There is one passage is given, so you have to read out and solve all the answer, and you have to write the answer, because these all are related to your AD and AS. So when there is
cut in repo rate, so there will be increase in the money supply. When there is decrease in the CRR, cash reserve ratio, that there will be increase in the money supply. So it is related to all those topics. And the next question, that is question number 9, which is related to your passage, that the difference between the actual AD and the aggregate demand. So what will be the situation, whether it is inflationary gap or the deflationary gap. So we know very well, when the actual AD becomes more than the required AD or the AD, so the situation is the inflationary gap. Next one is question number 10 is excess demand. So Keynesian theory के according क्या होता है? Keynesian theory के according excess demand में situation होती है when there is no change in the employment output, but there is increase in the general price level. Next question is, the GVA at MP is always same at the GDP at MP? No, this statement is wrong. Next question is, intermediate goods are always durable in nature? No, it is non-durable in nature, because when the intermediate goods are used for the further production, for the production of the final goods, all the intermediate goods loses their identity. The question number is 12 is giving the valid reason whether this statement is true or false. So the first one is, current account in BOP records only the export and import of the goods and services. So this statement is given, so you have to explain that this statement is right or wrong. So this statement is false, because in the current account we also include the export and import of the goods and services, unilateral transfer, and the income from the investment. Okay. Next one is, borrowing from the abroad. Borrowing from abroad are recorded in the capital account of the BOP in the debit side. So borrowing from the other country, it is recorded in the capital side, capital account, but it is not included, it is not recorded in the debit side, it will be in the credit side. Next question were, define multiplier, and what is the relation between the credit creation or the multiplier, whether they are inverse relation or in the positive, in the favorable condition, positive relation. So we have also discussed with the hypothetical example in the previous class. And the question number 14 related to your income determination, when the any consumption function is given and investment expenditure is also given, so you have to justify your answer that when there is any income is given, so in that situation the economy is at equilibrium or not. So we have proved already in the previous class. Next question we have started, that is, in India's GDP contracted 23.9% in the April-June quarter of the 2021 as comparison to 1920. So suggest, state and discuss any two fiscal measures that may be taken by the government of India to correct the situation indicated in the above. कि ऊपर जो भी ये सिचुएशन दे रखी है, सबसे पहले आपको ये सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये सिचुएशन किस चीज़ से रिलेटेड है, वेदर इट इज़ एक्सेस डिमांड और द डेफिशिएंट डिमांड. उस कंडीशन को जानने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिजिकल मेजर्स को बताना पड़ेगा. और यहाँ पे हमने देखा था ये सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड की थी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो फिजिकल मेजर्स हम लोग ले लेते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, आउटपुट प्रोड्यूस होगा. तो अगर इनकम बढ़ेगी तो लोगों का कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन फर्म्स करेंगी, तो फिर वो सिचुएशन जो डेफिशिएंट डिमांड की हो गई थी वो इक्वल हो जाएगी. नेक्स्ट था आपका कि यहाँ पे जो भी टैक्सेस हैं, जो भी गवर्नमेंट टैक्स कर रही है, इम्पोज कर रही है, या जो भी इम्पोज कर रही है उसको बोल दिया जाएगा कि नहीं, अब टैक्स को, न्यू टैक्स शुड नॉट बी इम्पोज्ड, और जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है, जो ऑलरेडी टैक्स रेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनके भी रेट को क्या कर देना है, डिक्लाइन कर देना. जस्ट ऑपोजिट, अगर यही कंडीशन आपकी एक्सेस डिमांड की हो जाएगी तो देयर शुड बी इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्स को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना है, ठीक है, एंड डिक्रीज इन दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देना. ओके, टिल हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. In the today's class we are moving to the question number 16. Okay, so let's get started. So
the question number 16 is also divided into two part 1 and part 2, and you know very well that question number 16 is of 6 marks. ये question जो है वो 6 marks का है. अगर दो part में हो गया तो that means कि वो 3 में division होगा उसका. ठीक है, तो question दे रहा है domestic / household services which is performed by a woman may not be considered as an economic activity. Defend or refute the given statement with the valid reason. आपको ये क्या कह रहा है कि जो भी डोमेस्टिक और हाउस होल्ड सर्विस होती हैं, ठीक है, डोमेस्टिक जो हम लोग घर पे ही काम करते हैं, हाउस होल्ड जो बोलते हैं ना, हाउस होल्ड घर पे ही काम कर, वो कौन कर रहा है? विमेन जो परफॉर्म कर रही हैं, मे नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती. ये स्टेटमेंट आपको दे दिया है. अब आपको इसको डिफेंड करना है या रिफ्यूट करना है विथ वैलिड रीज़न. डिफेंड करना मतलब इसको बचाना, इसको बताना कि हाँ ये सही है. रिफ्यूट करना मतलब इसको आपको बता देना है कि नो दिस इज रिफ्यूटेड बिकॉज ये स्टेटमेंट गलत है. हमें पता है, हम लोग ने क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बिजनेस में भी इकोनॉमिक्स में भी, कि एक्टिविटीज़ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमको क्या है, कुछ अर्निंग होती है, हमको कुछ पैसा मिलता है इन रिटर्न. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं कि हम काम तो कर रहे हैं बट उस पर रिटर्न में हमें कुछ मिल नहीं रहा है. जैसे एक कोई लेडी है, वो स्कूल में पढ़ा रही है, ठीक है, तो उसको वहाँ से अर्निंग हो रही है. वही लेडी अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो वो क्या हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि वो अपने बच्चे से रिटर्न में कुछ लेगी नहीं मुझे कि 500 रुपये मेरे को दो. एकदम सिंपल सा है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में यही है. जैसे हम लोग टेम्पल जा रहे हैं या किसी का लव अफेक्शन है किसी का, वो सारा क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके रिटर्न में हमको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा. बट वही काम अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, इन रिटर्न हमें कुछ मिल रहा है. वही अगर वो जो हाउस होल्ड है, जो विमेन है, वो अपने घर में खाना बना रही है, ठीक है, तो इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है. वही विमेन क्या कर रही है? टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड कर रही है, टिफ़िन दे रही है अलग अलग जगह पे, तो उसको क्या होगा? पैसा मिलेगा. तो वही काम वही क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में होगा, क्योंकि वहाँ से इनकम का जनरेशन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है, इसको इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे? डिफेंड करेंगे. क्यों? क्योंकि ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. वो क्या कर रही है? वो घर में काम करी. देखिए इसमें भी कह रहा है कि डिफेंडेड बिकॉज it is difficult to measure the monetary value of the services performed by the women as such activities are performed out of love and affection. मतलब अब अगर कोई, जैसे हम लोग हर एक काम को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है. अब कि कोई मदर का अपने बच्चे के लिए उसका कोई केयर कंसर्न लव है, उसको मॉनेटरी टर्म में नहीं मेजर कर सकते कि वो 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इतना प्यार करती है अपने बच्चे को. इम्पॉसिबल है. तो यही सारी चीज़ें हैं कि एक कोई वुमेन अगर काम कर रही है, घर पे खाना बना रही है, तो इसका ये मतलब है कि वो लव और अफेक्शन के लिए कर रही है, क्योंकि हर एवरीथिंग इज नॉट मेंशन्ड और दी मेजर्ड इन दी मॉनेटरी टर्म्स. हम हर एक को मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फिर कह रहा है हाँ परफॉर्म, सो देयरफॉर दीज एक्टिविटीज आर नॉट कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आपको आंसर लिखने का यही है कि आप सबसे पहले इसको डिफेंड करोगे, बिकॉज फिर आप ऐसे लिख भी सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम डिवाइड करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो भी काम करने पे हमें क्या है? अर्निंग होती है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी अर्निंग, कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है. दिस इज़ ओनली फॉर आर सेटिस्फेक्शन और द लव अफेक्शन एक्सेट्रा. अब ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि वही हाउस होल्ड जो विमेन है वो क्या कर रही है? अपने चिल्ड्रेन को फूड आइटम्स दे रही है, खाना दे रही है, तो वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक. वही विमेन क्या है कि टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसको इनकम जनरेशन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी. इस सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग एक आंसर का क्या कर सकते हो? कंक्लूजन कर सकते हो. एंड दस यू कैन राइट देयर दैट्स वाई द विमेन विच इज़ वर्किंग एट दी household, they are not included in the household or not included in the economic activity, because everything is not measured in terms of monetary terms. और जो भी monetary terms में measure नहीं हो रहा है तो वो economic activity नहीं हो सकती है. ठीक है, तो second part इसका है. Second part is also given that the compensation to the victims of the cyclone
इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वेलफेयर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कॉम्पनसेशन देखिए, विक्टिम्स जो है, जो साइक्लोन है, मतलब किसी भी कंट्री में एक साइक्लोन आ गया है, ठीक है, उस केस में गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर रही है, मतलब उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। मतलब अभी अगर हमारे यहाँ कुछ हो जाता है तो दूसरी कंट्री क्या होती है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, फूड आइटम से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। तो वही क्या है कि कॉम्पनसेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, साइक्लोन आया है, उनके जो भी विक्टिम्स हैं, जो भी उससे सफर्ड किए लोग हैं, उनको कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द वेलफेयर मेजर। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, वेलफेयर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि हर काम, कुछ काम एक ग्रोथ के लिए भी होता है, तो कुछ काम वेलफेयर के लिए भी हो सकता है। हम कभी भी वेलफेयर को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस किसी से नहीं कर सकते कि सारे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इकोनॉमिक वेलफेयर हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट को क्या है, जैसे ड्रग्स हो गया, आपके डिफरेंट सिगरेट्स है, बियर है, इससे गवर्नमेंट को क्या है, टैक्सेशन मिलता है, बट इनका प्रोडक्शन किसी भी कंट्री के लिए वेलफेयर केस नहीं हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कह रहा है कि ये कोई भी गवर्नमेंट का एक वेलफेयर है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वेलफेयर कर रही है। सो स्टेट विद वैलिड रीजन शुड इट बी इंक्लूडेड और द नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दे दिया कि कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी विक्टिम्स हैं साइक्लोन के, वो एक वेलफेयर हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है। तो क्या ये जो आइटम है, ये जो कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है मॉनिटरी टर्म्स में, क्या ये आइटम्स क्या है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? अगर होंगे तो क्यों होंगे, नहीं होंगे तो क्यों होंगे? हमें पता है कि कोई भी डोनेशन, गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप, वन साइडेड पेमेंट कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, बिकॉज दीज ऑल आर वन साइडेड पेमेंट और दी यूनिलैटरल ट्रांसफर, और यूनिलैटरल ट्रांसफर, वन साइडेड पेमेंट नेवर एवर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर पेमेंट। इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, कि ये आइटम्स क्या है, जो भी वन साइडेड पेमेंट होती है वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, यही इसका सिंपल सा आंसर हो गया कि वन साइडेड पेमेंट नेवर एवर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट। तो ये सब क्या है, ये इसमें कोई भी करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है, तो ये नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। सो वन क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन और में दिया है, क्वेश्चन 16 का ही और एक दे रखा है। इसमें कह रहा है, सपोज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ नेशन एक्स वॉज ₹2000 करोड़ in 2018-19, whereas the GDP of the nation Y in the same year was 1,20,000 crores. If the GDP of the nation X rises to 4,000 crore of 1920 and the GDP of nation Y rises to 2 lakh crore in 1920, compare the rate of change of the GDP of the nation X and Y taking 1819 as the base year. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। और so the question is given here, suppose the GDP of a nation X, हम लोग यहाँ पे नेशन लिख लेते हैं, नेशन, क्योंकि दो नेशन का लेके चल रहा है, नेशन एक्स, और जीडीपी दे रखा है, तो जीडीपी इन 2018-19, जीडीपी 2018 एंड 19, जीडीपी उसको कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है, 2019-20। ठीक है, आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन इज गिवन। नेशन एक्स का कितना है जीडीपी, रुपीज इन करोड़ में दिया हुआ है एक्स, सो रुपीज 2000 करोड़, एंड वाई इज रुपीज 1,20,000 करोड़। ठीक है, जीडीपी 1920 में एक्स का दे रहा है रुपीज 4,000
crores and rupees 2 lakh. अब यहाँ पे आपको कह रहा है ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपको ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी निकालना है। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी कि दोनों कंट्री में ग्रोथ रेट जीडीपी का कितना हो रहा है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। और उसमें कह रहा है कि टेकन 1819 एज द बेस ईयर, 1819 को टेकन 2018-19 एज बेस ईयर। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, बेस ईयर लेके चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज इन जीडीपी, चेंज इन जीडीपी अपॉन बेस ईयर जीडीपी, क्योंकि हमको यहाँ पे बेस ईयर की कंपैरेटिवली निकालना है, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो किसी इसके अंदर ही किसी प्रीवियस ईयर के साथ ही करके करते हैं, तब ही हम बता सकते हैं कि उस केस में ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी 1819 को बेस ईयर ले लिया है, सो इसका फॉर्मूला है चेंज इन जीडीपी डिवाइडेड बाय बेस ईयर जीडीपी। जो भी बेस ईयर है इनटू 100 कर देंगे तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो चेंज इन जीडीपी हम कैसे निकालेंगे, जीडीपी में चेंज मतलब 4000 माइनस 2000, ये हो गया आपका चेंज। सो 2000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर जीडीपी, आपका 1819 को हम बेस ईयर ले रहे हैं, तो 2000 इंटू 100 से करना है, सो इट विल बी 100%। ठीक है, नेशन एक्स का कितना आया, 100% ग्रोथ रेट है जीडीपी में। वही अगर हम लोग बात करते हैं वाई नेशन की, चेंज इन जीडीपी कितना हो गया, 2 लाख माइनस 1,20,000, आपका हो गया 80,000 डिवाइडेड बाई, हमें डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है बेस ईयर जीडीपी। बेस ईयर जीडीपी कितना दे रहा है, 1,20,000 इंटू 100, राइट। ऐसे आपको टेबुलर फॉर्म में शो करना है बस इसका वर्किंग। इसको कट कर दीजिएगा, इट विल इक्वल टू दी 66.67%। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कह रहा है हाँ, कंपेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी ऑफ नेशन एक्स एंड वाई। जो भी रेट ऑफ चेंज है जीडीपी का उसको आपको कंपेयर करना है। अब आप कंपेयर करके देखो, नेशन एक्स का जो जीडीपी में चेंज हो रहा है वो 100% चेंज हो रहा है, मतलब वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा हो रही है, मतलब जितना 1819 में थी उतना ही 1920 में भी हो रहा है। बट अगर हम लोग वाई नेशन की बात करते हैं तो वो उसमें 66.67 ही हो रहा है। तो जो भी ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो नेशन एक्स का मच बेटर है बिकॉज ऑफ दी 100% ग्रोथ हो रहा है, और वहीं अगर हम लोग वाई का देख रहे हैं तो 66.67% ही ग्रोथ रेट हो रहा है। तो नीचे आपको यही एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देना है कि ये क्या है कि ग्रोथ रेट है जो नेशन एक्स का वो 100% हो रहा है एज कम्पेयर टू नेशन वाई, बिकॉज उसका 66.67 हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था आपका। नेक्स्ट हम मूव करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 इज द इलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द गवर्नमेंट बजट। अब आप लोग याद करिए कि जब गवर्नमेंट बजट हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे बहुत सारे, याद आ रहा होगा, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, 4 to 5 पॉइंट्स थे। उसमें का ही एक पॉइंट है जिसमें कह रहा है कि एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, उसी को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। और इस क्वेश्चन नंबर 17 के भी 2 पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन ये है, elaborate the objective of the allocation of the resources in the government budget, and the next one is discuss briefly how the government budget can be used as an effective tool in the process of employment generation। एकदम सिंपल सा है। देखिए इस जो भी सैम्पल पेपर दिया है इसमें ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दिया है, ये नेशन का डिवीजन करने के लिए दे दिया था। ओके, तो है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए गवर्नमेंट कभी भी
रिसोर्सेज को गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली एलोकेट करे, उनको देखे, फिर उनका क्या करे, प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करे। रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका ऐसा होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो करें ही, बट इकोनॉमिक वेलफेयर भी होना चाहिए। हम इकोनॉमिक वेलफेयर को स्किप करके इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कभी नहीं कर सकते। सो गवर्नमेंट सीक्स टू एलोकेट रिसोर्सेज विथ अ व्यू टू बैलेंस द गोल ऑफ द ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे एलोकेट करे, ऐसा नहीं है कि बस एक सेक्शन का, एक सोसाइटी का एक सेक्शन है जो रिच है, रिच सेक्शन है वो रिच होता जा रहा है, और जो पुअर सेक्शन है उसको गवर्नमेंट ने एकदम रिजेक्ट कर दिया। ऐसा कोई भी डेवलपमेंट इज नॉट वैलिड। हम जो रिचर है वो बिकम्स मोर एंड मोर रिच, बिकम्स मोर एंड मोर रिचर, एंड द पुअर बिकम मोर एंड मोर पुअरर। तो इट doesn't say that it is the balanced growth between all the societies of this all the sections of the society की एक सोसाइटी के हर एक सेक्शन का अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ये बैलेंस गोल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करे, कहाँ पे कितने उसको रिसोर्सेज लगाने हैं। अगर गवर्नमेंट देख रही है कि रिच सेक्टर जो है ऑलरेडी एफ्लुएंट सोसाइटी है, जहाँ पे ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज मिल चुके हैं अगर है, तो उनको उन रिसोर्सेज को क्या करना है, वहाँ से थोड़ा सा लीक करके, मतलब वहाँ से थोड़ा सा विथड्रॉ करके हमें कहीं और जहाँ पे पुअरर सेक्शन है उन पे क्या करना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो हम डेवलपमेंट बात बस वो नहीं कहते हैं कि हाँ ये रिच, जो भी रिच हैं वो ही डेवलप्ड में आएंगे, जो पुअर हैं उनको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि किसी भी इकॉनमी में वो सारे ही पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि सारे ही आपके नेशनल इनकम में, ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हम ऐसे रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करेंगे कि जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जैसे अगर हम लोग सेक्टर्स में बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और दी टर्शियरी सेक्टर, तो अब बस कंटिन्यूसली टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट होता जा रहा है, प्राइमरी सेक्टर एकदम रिजेक्टेड है। तो ये भी कोई भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट डायरेक्ट द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी गवर्नमेंट का बजट आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें सारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको डायरेक्ट करती है, उनको देखती है कि हम कैसे पूरी कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द सोशल वेलफेयर। कि वहाँ पे जैसे एक वेइंग हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, कि प्रॉफिट हम लोग बोल रहे हैं कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वी कांट इग्नोर द सोशल वेलफेयर। हम सोशल वेलफेयर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि बस मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करते जाएं और सोशल वेलफेयर को छोड़ दें। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए कि प्रॉफिट भी होता रहे और सोशल वेलफेयर भी होता रहे। सोशल वेलफेयर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इंजूरियस टू हेल्थ में बी डिस्करेज थ्रू टैक्सेशन। देखिए अब इसमें लाइन है, बट गवर्नमेंट कितना फॉलो करती है, यू नो वेरी वेल, कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का विच इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, जैसे हम लोग बात करते हैं सिगरेट्स की, जैसे बियर, ये सब है, इन पे गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन इम्पोज कर देना चाहिए, जिससे क्या हो, ये सारी गुड्स का प्रोडक्शन डिस्करेज हो, कि ज़्यादा टैक्सेशन हो जाएगा, ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो डिस्करेज होंगे टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर कमोडिटी। जैसे आइटम्स हैं लाइक खादी आइटम्स जो इंडिया से धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, इन सारे पे सब्सिडीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इन सारे का प्रोडक्शन से लेके इनका लोगों का कंजप्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग एक बात किए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है, एक और टैक्स भी ले रहे हैं हम लोग इंजूरियस जो भी गुड्स हैं, और एक और हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट आइटम पे, जैसे उनका क्या हो, उधर से भी हमको क्या हो, सोशल वेलफेयर भी होता रहे। सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ सोशली बेनिफिशियल नेचर में भी इनकरेज थ्रू सब्सिडीज। ठीक है, वही बात हो गई कि सब्सिडीज के थ्रू
उनका भी प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ठीक है, देखिए सब कुछ गवर्नमेंट के ही हाथ में. गवर्नमेंट की वो प्रॉपर अच्छे से ज़्यादा अच्छा बजटरी पॉलिसी लेकर आएगी तो उतना अच्छा डेवलपमेंट भी होगा. अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि अब गवर्नमेंट को बेसिकली है कि गवर्नमेंट को बजट में लाना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, एक्सपेंडिचर करे. एक्सपेंडिचर करेगी तो कंस्ट्रक्शन करा रही है तो लोगों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी. ब्रिजेस बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो पीपल क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे तो इनकम जनरेट होगी. जब लोगों के पास इनकम होगी सो इट विल लीड टू दी increase in the consumption expenditure as well as the increase in the investment expenditure from the investors. और गवर्नमेंट डिफरेंट ये एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स ला सकती है. जैसे आपको पता है प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी, फिर है आपका मनरेगा है, राजीव गांधी है, संपूर्ण स्वरोजगार योजना. ये सारे डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के भी थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सकती है. ओके, सो फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो completed your macro part of the CBSE sample paper 2020. In the next class we will discuss with the Indian economic development. Okay, thank you.